Student, good morning. Today we discuss the heating effect of current. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि हम एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R, उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल जब करंट पास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो जाएगा V, पोटेंशियल डिफरेंस V between two ends of a given conductor having the resistance R. Heating effect means जब किसी का when we flow the current inside the conductor of resistance R, then due to flow of current and resistance R in a given conductor, the conductor gets heated after some time and some amount of heat is produced. And जूल्स ने बताया था जो amount of heat is produced होगी that is proportional to I square RT, ये आपके पास कैलोरी में। ओके, I square RT, I is the current, R is the resistance, T is the time. Okay, and that is possible when the current is same or in term of V for a given V, ये for a given current for a given V, that ये भी कैलोरी में। Okay, now we know that work done is equal to charge into the potential difference and current is equal to dq by dt. So now here dw vi dt, टोटल वर्क डन के लिए 0 से t, यहाँ पे आपके पास w vi t ये जूल, और जो हीट दैट इज इक्वल टू वर्क डन और हीट इज इक्वल टू वर्क डन, और ये आपके पास होगा VIT जूल, VIT जूल। तो हीट इज इक्वल टू VIT जूल है। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर RT जूल, I स्क्वायर RT जूल। यहाँ पे जो हीट है जो आपके पास आई, हीट इज इक्वल टू VIT जूल। बेटा वी नो 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल, या इसको जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो H इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो ये I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। ओके, and 4.2 that is considered to be joule equivalent constant that converted into proportional to I square RT. तो according to Joule's law of heating effect, अब Joule's law of heating effect में first statement, the amount of heat that is amount of heat is produced inside the conductor that is proportional to square of current, resistance and the time. Okay, ये आपके पास है heat. If the current is same, for a same current, we mean say there are two important formula. One is what? One formula is that H is I square RT. When I is same, तो heat is proportional to resistance. Okay. When V is same, जैसे H is proportional to V square RT. When V is same, H is proportional to R. यानी कि in series में heat produced that is proportional to resistance, because in series current is same. When current is same, then in series we can say the amount of heat is produced that is proportional to resistance, and in parallel the heat is produced is inversely proportional to resistance. तो ये हमारा अपना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में। Mainly these 2 points can be noted. In series, amount of heat is produced that is proportional to resistance, and in parallel the amount of heat is produced is inversely proportional to resistance of a given conductor. अब यहाँ पे इसके बाद सुनिए ध्यान से, पावर। तो पावर इज, यहाँ पे पावर जो होती है, पावर जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द करंट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर मेंटेन द करंट, और इलेक्ट्रिक पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन अभी हमने प्रूव किया है, वर्क डन इज इक्वल टू VIT जूल,
व्हेन वर्क डन VIT जूल है तो ये VIT ये जूल और T आपके पास सेकंड और जूल पर सेकंड और ये होगा VI जूल पर सेकंड दैट इज वॉट और दिस कैन बी रिटन एज I square R वॉट or in other form V square by R what these are the formula of electric power. Electric energy आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी ये आपके पास क्या होता है कि कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट to maintain the electric current or that is only equal to work done of work done there is VIT joule we can write and I square RT we can write joule or V square by RT joule ये आपके पास हो गया एनर्जी का जो कॉमर्शियल जो फॉर्मूला है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो आपके होती है किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 3.6 10 की पावर 6 वोल्ट होती है दैट इज नोन टू बी BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ये भी 3.6 10 की पावर 6 होती है और जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें 1 यूनिट कंज्यूम होने का मतलब 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10 की पावर 6 वॉट ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी अब देखिए आपके पास इन पे बड़ा अच्छे से न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे आप यू हैव गिवन टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क टू इलेक्ट्रिक बल्ब है मार्क 60 वॉट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट 220 वोल्ट देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब है एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे ये मार्क है लिखा हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट सेकंड इलेक्ट्रिक बल्ब पे ये मार्क है 100 वाट 220 आपके पास क्या है 220 आपके पास वोल्ट है द which glow brighter which glow brighter when they are connected in fast series or parallel काफी इंपॉर्टेंट है you have done two electric bulb they have mark 60 watt 220 volt 100 watt 220 volt which glow brighter when they are connected in series and they are connected in parallel सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं डोमेस्टिक में हम यूज करते हैं और डोमेस्टिक में जैसे कि जो कॉम्बिनेशन जो सप्लाई होती है हमारी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है बट यहाँ पे बोथ बल्ब हैव द सेम वोल्टेज व्हेन बोथ हैव द सेम वोल्टेज के लिए पावर का फार्मूला क्या था V square by R here two bulb has the same voltage V is same the power is inversely proportional to resistance so now here power of 100 watt is greater than power of 60 watt क्योंकि one has 60 watt another has 100 watt जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा पॉइंट टू बी नोटेड क्योंकि बोथ हैव द सेम वोल्टेज फॉर द सेम वोल्टेज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और फॉर द सेम करंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू द what current now here voltage same है तो for the same voltage power is inversely proportional to the resistance हमने आपको फॉर्मूला बताया थे पावर का P is equal to I square R ओके और P is equal to V square by R ये एप्लीकेबल जब होता है जब करंट सेम दिस इज एप्लीकेबल फॉर द वोल्टेज सेम तो नाउ हियर रेजिस्टेंस ऑफ द 100 watt is less than the resistance of 60 watt अब हमारा ये है when they in series first point when they are connected in series when connected in series और हीट सीरीज में हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर अभी डिस्कस किया है इन सीरीज कॉम्बिनेशन हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो दैट मींस नाउ हियर रेजिस्टेंस ऑफ
60 watt is greater than resistance of 100 watt. According to this relation, we can say heat produced by the 60 watt is greater than heat produced by the 100 watt. So we can say when they are connected in series, then 100 watt bulb is glow brighter. 100 watt bulb is glow brighter when they are connected in series. अब इसमें सेम एज आता है when they are connected in parallel. जब हम इनको पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे तो व्हाट विल बी हैपेंस. अब इसको ध्यान से देखिएगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बतलाया, क्या बतलाया पैरेलल में, कि हीट प्रोड्यूस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस तो ये प्रूव कर दिया हमने, रेजिस्टेंस तो 160 वाट का ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी हीट कम होगी. तो पैरेलल में हीट प्रोड्यूस बाय 60 वाट इज लेस देन हीट प्रोड्यूस बाय द 100 वाट. दैट्स व्हाई इन पैरेलल 100 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर. ये आपके पास इस प्रकार यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड होपिंग दैट you will do it every type of numericals. एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपके पास. देखिए आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है. यहाँ पे आपके पास एक हीटर है, ओके, ये आपके पास हीटर, और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रॉब्लम को देखिएगा इसको. यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, यहां से ये आपके पास कोई 100 वोल्ट की सप्लाई है, दिस इज 100 वोल्ट, और यहां से ये 100 वोल्ट. कहते हैं ये जो हीटर है, हीटर जो डिजाइन है, जो हीटर जो मैन्युफैक्चर हुआ है इस हीटर का, इसका देखा है, इसकी जो पावर है वो 100 वाट है, और इसकी ये है 100 वोल्ट. जो आपके पास हीटर तो जो डिजाइन किया गया है, डिजाइन मीन्स हम जब भी कोई चीज डिजाइन करते हैं भाई, इसकी ये जो मैक्सिमम जो है इस पावर पे काम करेगा, इतने वोल्टेज के तहत काम करेगा. ये मैन्युफैक्चर होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं सबका अपना होता है भाई, इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो इतनी है. तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि हीटर इज डिजाइंड एट 1000 वाट एंड 100 वोल्ट. तो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कैसे निकालेंगे. अब पावर इज इक्वल क्या होता है, V स्क्वायर बाई R. तो यहाँ R H मींस रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, V स्क्वायर बाई E. V स्क्वायर आपके पास है 100 का स्क्वायर बाई 100, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1000 है, और ये आपके पास होगा 10 ओम. दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर. जो रेजिस्टेंस के अंदर जो हीटिंग कॉइल है, जो फिलामेंट है, जिसके हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है. यानी कि ये जहां मैन्युफैक्चर हुआ है उन्होंने डिजाइन कर दिया कि ये हीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है. ओके, इस न्यूमेरिकल में मैंने जो आपको असाइनमेंट भेजा है उसमें लिखा हुआ कि हीटर ड्रॉप, जो पावर पोटेंशियल ड्रॉप जो ड्रॉप करता है, जो वहां इसका कितना है, 62 वोल्ट. इतने पावर को ड्रॉप कर देता है. जब पावर इतनी आती है तो ड्रॉप कर देता है. इतनी 1000 वाट से मैन्युफैक्चर है, बट कोई रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, तो ये ड्रॉप कर देता है. पावर कितनी पावर ड्रॉप करता है, पावर ड्रॉप इतनी है. अब यहाँ पे पावर जो है, पावर ड्रॉप दैट इज इक्वल टू 60.2 वोल्ट. ओके, इसका रेजिस्टेंस आपके पास है RH क्या है, 10. अब यहाँ पे हम इसका वोल्टेज ड्रॉप ऑफ हीटर VS निकाल देंगे. V जैसे P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो V क्या बनेगा, ये आपके बन जाएगा VP इनटू में RH स्क्वायर. ओके, अब यहाँ P कितना है, 62.5 इनटू में 10, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 वोल्ट. जो हीटर जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा 25 वोल्ट करेगा, हीटर ड्रॉप करेगा 25. यदि ये 25 है तो इसके अक्रॉस भी 25 होगा. कहने का मतलब यहाँ A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ 25 और यहाँ भी 25. और हमारे पास जो
वोल्टेज है, वो वोल्टेज है हमारे पास 100। अब 100 वोल्टेज है तो यहां से मान लीजिए कोई करंट आई जा रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एसी, अब वोल्टेज अक्रॉस एबी जो होगा दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस हीटर, वोल्टेज अक्रॉस आर, ये रेजिस्टेंस, और ये हो गया 25 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे वीबीसी, वीबीसी के अक्रॉस होगा वी माइनस वीएबी, और ये हो गया आपके पास 75 वोल्ट। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 75 हो गया। जब वोल्टेज यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे जो करंट आएगा, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो करंट आपके पास हो गया 7.5 एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट है वो 7.5 आ रहा है, 7.5 एम्पियर। यहाँ से करंट मान लीजिए I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है। अब यहाँ से करंट I2, यहाँ से करंट I1, टोटल I। अब आप यहाँ से करंट I2 निकाल सकते हो। यहाँ पे हीटर, करंट थ्रू द हीटर क्या होगा, करंट थ्रू हीटर, करंट थ्रू हीटर, हीटर के अक्रॉस करंट निकालना जरूरी है क्योंकि VH वोल्टेज ड्रॉप पता है, हीटर के अक्रॉस करंट इंटू में क्या V स्क्वायर IR, हीटर का रेजिस्टेंस, हीटर का अक्रॉस करंट क्या है I1, तो I1 क्या बन गया VH बाई RH। VH कितना है हीटर का वोल्टेज 25, इसका RH कितना है हीटर का रेजिस्टेंस 10, तो यहाँ जो करंट है वो 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है हीटर के अक्रॉस, करंट अक्रॉस द हीटर दैट इज I1। अब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहा है तो करंट इसके अक्रॉस क्या हो गया भाई, हमारे पास टोटल करंट 7.5 है, हीटर के अक्रॉस 2.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करेगा 5.0 एम्पियर करेगा। तो I2 की वैल्यू आ गई क्योंकि टोटल करंट आई है, हीटर के अक्रॉस करंट कितना गया 2.5, और इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो 5.0 एम्पियर होगा। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। अब R की जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे, हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V है, अब V इक्वल टू आई आर, यहाँ V है आपके पास 25, करंट I2, और यहाँ रेजिस्टेंस आपने निकालना है, और यह I2 की वैल्यू आप निकाल के ये 5 इंटू में R, ये 25, और रेजिस्टेंस अननोन जो रेजिस्टेंस है जो हीटर के साथ जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसका आपका रेजिस्टेंस होगा 5 ओम। तो ये सब टाइप की जो न्यूमेरिकल्स है आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और होपिंग दैट यू विल डू इट प्रॉपरली, आप इन सभी को सोल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास बेटा क्या आता है सुनिए, अब हमारे पास आता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। देखिए मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, ये आपके पास है मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये मैक्सिमम पावर थ्योरम, जो मैक्सिमम पावर थ्योरम ये स्टेट कर, तो यस हम बताते हैं मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। इस मैक्सिमम पावर थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे कि इट स्टेट दैट पावर इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कि पावर मैक्सिमम होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से जैसे ये आपके पास सेल है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे आपके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो E इक्वल टू होगा वो I R प्लस R, और यहाँ पे I इक्वल टू E R प्लस R। यहाँ पे जो पावर होगी, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दो E स्क्वायर R, और यहाँ पे R प्लस R का स्क्वायर। यानी मैक्सिमम पावर में ये होता है कि भाई पावर इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पावर इज मैक्सिमम व्हेन P इज मैक्सिमम, जब आपके पास पावर मैक्सिमम है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा दैट इज इक्वल टू 0। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 होने का मींस D बाई dr, यहाँ पे आपके पास हो गया कि E स्क्वायर R
r plus r पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies e square is not equal to 0। यहाँ पे आप implies क्या बन जाएगा d by dr और यहाँ पे r plus r की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 0। आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप डिफरेंशिएशन कर दो d by dr फर्स्ट टर्म आपने क्या ले ली r फर्स्ट r d by dr यहाँ पे r प्लस r की पावर -2 प्लस सेकेंड टर्म r प्लस r की पावर -2 d by dr r दैट इज इक्वल टू 0। इसका r डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपके पास -2 है तो -2 r प्लस r -3 हो गया। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो इसका, यहाँ पे r प्लस r की पावर -2 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बन गया -2r अपॉन r प्लस r ये क्यूब दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन r प्लस r का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2r इज इक्वल टू r plus r is equal to r, that means external resistance of the circuit that is equal to internal resistance। अब external resistance of the circuit that is equal to internal resistance of the circuit ये आपके पास